I recently had a conversation in one-to-one session with someone who has a career gap of 4 years, which he has taken between 12th and graduation. So right now he's pursuing graduation from IGNOU from economics, and he aspires to be a business analyst or a data analyst. And somebody recommended him that to cover this gap and make a nice career in corporate world, MBA is the only way. I mean, seriously? Man, who is there outside misguiding you? Do you really think old IIMs or any B school which gives you a worthy ROI is going to accept such kind of profile? Maybe in very odd terms, if I've done some extraordinary work, then I can think some of the good B school will be able to give him admission for MBA. But is he going to take a good decision for his career? Because even after justifying his year gap and converting to a good B school, will the corporate companies be accepting him? That's the question. Hi everybody, my name is Shubhangi Iyer and I'm final year student of IIM Kozhikode, and I think this is the last video I'm shooting from my hostel area because very soon I'm going to get graduated from the institute. But we'll keep talking. Does the gap year actually hampers placements? To be honest, yes. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. Here arises a basic decent question. Am I even gonna get an admission in premium B school even after having a gap of 2 to 3 years in my career? Second thing, chalo, in some scenario, I imagine I get into a good college. Am I gonna get a good corporate entry? Let me clear you something in the first half of this video. First thing is, yes, college gives you admission despite having several years of career gap in your profile. Second thing is, yes, corporate accept the profile even if you have several years of gap. But what is the ideal time till when you are in the zone of possible agreement between the college and the company? We are going to discuss this in detail in this video. But first, let me introduce you to the very special offer of ours. Physics Wala has recently launched an impressive course for GMAT preparation. Those who are aiming for a premium B school for making their career shift or start a new career or growing into a corporate ladder, they can get admission into premium B school in India and abroad. GMAT के through ISB, Harvard जैसी यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो सकता है और फिजिक्स वाला के GMAT स्टेलर कोर्स के थ्रू आप पा सकते हैं 40+ लाइव सेशंस, ए मॉक पेपर, DPP जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 12,999 रुपीज में। और इसका जो प्रो वाला है ना कोर्स, इस प्रो कोर्स के बेनिफिट्स और भी लाजवाब है। इसमें आपको मिलेगा 1-to-1 सेशन, 50 से ज्यादा मेंटरिंग क्लासेस और 300 से ज्यादा DPPs डेली प्रैक्टिस पेपर, ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी स्ट्रांग हो जाए, जिसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी आपके अब्रॉड यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए। और ये अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं 16,499 में। ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड टू गेट द एडिशनल डिस्काउंट। और हाँ, चूंकि ये लाइव सेशन है तो लिमिटेड सीट अवेलेबल है। अगर आप GMAT टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दिस, क्योंकि इस प्राइस में इतना अमेजिंग कोर्स शायद ही आपको कहीं से मिल पाए। नाउ लेट्स गेट बैक टू, आई विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल। सोचो आप एक बिजनेस चला रहे हो और आपके पास रिक्रूटमेंट के लिए कुछ बंदे आते हैं, जिसमें कोई ऐसा है जिसने ऑलरेडी 1-2 साल आपके बिजनेस में एक्सपीरियंस ले रखा है। दूसरा कोई ऐसा है जिसने थोड़ा बहुत काम किया है, माइट नॉट बी इन योर बिजनेस बट थोड़ा बहुत काम किया है, ही नोज कि कैसे बिजनेस वर्ल्ड चलता है। और तीसरा कोई ऐसा है जिसने 2-3 महीने काम किया है पर अपनी जिंदगी के 8-9 महीने रेस्ट में था। अब आप मुझे बताओ, जेन्युइनली आप किसको चूज करोगे? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टली एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जज करेगा सारे पैरामीटर्स पे, बट हार्श रियलिटी ये है कि कहीं से भी इवन फॉर 0.1% उसके मन में किसी के लिए बाइसनेस होगी, मस्ट बी द फर्स्ट कैंडिडेट। यहीं से राइज होती है गैप इन द इंडस्ट्री की प्रॉब्लम। बी स्कूल के लिए हमेशा हमें गैप ईयर को जस्टिफाई करने के लिए एक अलग से कॉलम बना होता है, या फिर हमें SOP में इंक्लूड करना होता है कि हमने क्या एक्स्ट्रा किया। सो हाउ कैन यू गो विद? हम इस वीडियो में 3 लेवल पर बात करेंगे। पहली चीज, कौन से गैप के आंसर्स कॉलेज और कंपनी दोनों को अच्छे लगेंगे। दूसरी चीज, कौन से आंसर्स आपको एक कॉलेज में कन्वर्ट तो करवा सकते हैं बट कॉर्पोरेट में थोड़ी सी सिचुएशन अप डाउन हो सकती है। तीसरी, कौन सी रीजंस आपको बिल्कुल नहीं देनी है, ये आपको ना कॉलेज दिलवाएगा ना ही कॉर्पोरेट। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त। फर्स्ट थिंग, गैप को एक्नॉलेज करो।
1 से 2 ईयर का गैप है अगर, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन बैक इट विथ योर सर्टिफिकेशंस, योर इंटर्नशिप। एनजीओ या कोई भी इंटर्नशिप कर लेना इज वेरी इंप्रेसिव स्टफ। बहुत सारी प्राइवेट बॉडीज हैं जो इनको गवर्न करती है। आप थोड़ा स्किल भी गेन कर लोगे, आपके पास थोड़ा एक्सपोजर भी आ जाएगा और MBA काउंट भी करेगा। सेकेंड थिंग इज फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस आपकी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स को, बिजनेस रनिंग स्किल्स को शोकेस करती है। आप फैमिली बिजनेस से उनके लेटर हेड पे डिस्क्रिप्शन में अपना काम लिखवा के एक अप्रूवल ले सकते हो। दैट इज समथिंग यू कैन काउंट ऑन। और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपोजर बोथ फॉर द कॉलेज एंड फॉर द कंपनी शो करेगी जो आपको मिला है। इट शोज यू ऑलरेडी हैव सम प्रैक्टिस एंड सम एक्सपीरियंस इन योर हैंड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज आप इसको स्टार्टअप के आइडिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इनके प्रोसेस से भी भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइंड जिसने 4 साल स्टार्टअप में लगाए। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली उसका स्टार्टअप फेल हो गया, बट उसके एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को कंपनी ने सराहा और हमारे कॉलेज के एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बॉडी ने फाइनेंस भी किया है उसके अनदर एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया के लिए। सो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, स्टार्टअप स्किल इज समथिंग जो बहुत अट्रैक्टिव होता है। आपके करियर में ऑलरेडी 4 से 5 साल का गैप है, आई थिंक इट्स अ हार्ड स्टॉप। मैं कई IIMs के एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ, मार्केट इतना भी ज़्यादा ओपन नहीं है कि 4-5 ईयर के गैप विदाउट एक्सपीरियंस वालों को बहुत ही रेडिली एक्सेप्ट कर ले। क्या इतना इन्वेस्टमेंट लगाना ठीक है? ये सवाल अपने आप से पूछ करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप एक्चुअली पढ़ना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, क्योंकि MBA से काफ़ी सारी स्किल बिल्डिंग होती है और सिर्फ प्लेसमेंट पाना आपका थॉट नहीं है, डेफिनेटली आप एक ट्राई दे सकते हो। लेकिन सिर्फ प्लेसमेंट के लिए, सिर्फ एक करियर इन करने के लिए अगर आ रहे हो तो सेकंड थॉट देना ज़रूरी है। इट्स बेटर दैट यूज इन्वेस्ट योर सेल्फ इन अपस्किलिंग। कोई बिजनेस स्टार्ट करे, कहीं पे काम करे, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करे। हार्श है बट ट्रू है, 4 साल का गैप थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये 4 साल का गैप अगर आपने UPSC प्रिपरेशन या किसी चीज़ की प्रिपरेशन में निकाली है, आपके पास स्टेट्स है जिसमें आपने PT या मेंस में से कुछ एक निकाला हो, तो ये जस्टिफाइड है। खत्म। वर्स्ट सिचुएशन समबडी गेट्स इन, जिसमें ना आपको कॉर्पोरेट एक्सेप्ट करेगा, ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। Starting with the third and the worst situation. This might be harsh to listen, but this is the actuality, is sickness, depression or stuff like that. The acceptance to these issues are very, very less. Whenever you are going to start a career and you'll highlight the problems which can actually hamper your future work, company might doubt you. अगर हेल्थ इश्यूज जेन्युइन भी हैं, पीरियड स्मॉल भी है, फिर भी आई वुड रिकमेंड हेल्थ इशू को बियॉन्ड 6 मंथ और समथिंग एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। 1 ईयर का गैप है तो इट्स बेटर टू शो कुछ सर्टिफिकेशन कर ली, कुछ कोर्सेज कर ली, इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग इट गैप। ये जिंदा है, इसी का देखो। ये इतने सारे सेशंस लेने के बाद मुझे एक और चीज़ पता चली, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इनके लिए भी कोई अच्छा रीज़न नहीं होता। वो कहीं से भी ना कोई सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर पा रहे हैं, ना किसी तरह के बिजनेस डेवलपमेंट की स्किल्स ऐसी चीज़ें शो कर पा रहे हैं, ना कोई प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, ना कोई सर्टिफिकेशन ले पा रहे हैं, या उनका टाइम पीरियड क्रॉस हो चुका है और गैप अप करियर में आ चुका है, मगर उनको MBA परस्यू करना है ताकि एक अच्छा शिफ्ट उनका करियर ले सके। ऐसी कंडीशन में आप क्रिएशन और केयर भी दिखा सकते हो। अगर आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यू वेयर द ब्रेड अर्नर और आपको कुछ करना पड़ा या किसी का देखभाल करना पड़ा, यू कैन शो दैट इज़ ऑल्सो अ जेन्युइन रीज़न। सेकेंड थिंग इज़ आप सेल्फ डेवलपमेंट भी दिखा सकते हो कि ठीक है आपने ट्रैवल किया, आपने कहीं पर वॉलंटियर किया। ये चीज़ें भी एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस और यू एज अ ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करती है और कॉलेज और कंपनी दोनों को अच्छी लगती हैं। मजा आया। नेवर से इट्स अ गैप, से इट्स अ स्किल बिल्डिंग पीरियड। किसी भी कंपनी को गैप में क्या अच्छा लगेगा? फर्स्ट थिंग इज गैप ईयर में सबसे ज़्यादा पसंद आएगी आपकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल। मैं नंबर 1 पे रेट करूँगी अगर आपका गैप ईयर इसलिए है क्योंकि आपने कोई स्टार्टअप किया था या किसी स्टार्टअप में काम कर रहे थे या कोई आइडिएशन था, डेफिनेटली कंपनी को ये बताओ। सेकेंड थिंग इज कोई भी कोर्स जिस रोल के लिए कंपनी आई है उससे एसोसिएटेड अगर आपने कोर्स कर रखे हैं उन गैप ईयर में, वेल एंड गुड, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। थर्ड थिंग इज अगर आपने किसी NGO के साथ काम किया है, कोई वेलफेयर का काम किया है,
तो ये चीज़ें भी नेगोशिएबल होती है। कंपनीज आजकल CSR में बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं, तो ये चीज़ें भी उनको अट्रैक्टिव लग सकती हैं। विद दिस आई थिंक आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्या फिगर आउट करना है आपको बिफोर गोइंग फॉर ए MBA इन 2025 और आपको अपने गैप का कैसे आंसर देना है। If you really like this video, please don't forget to like, share and subscribe my channel. ऐसे ही कई अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी आने वाले समय में भी और आपको गाइड करती रहूंगी। Still, if you want to book a 1-to-1 session to analyze your profile, क्योंकि रिजल्ट अभी भी अवेटेड है, you can reach me out through email and Instagram. Okay, bye. Take care. Never say it's a gap. Say it's a skill building period.